हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। मोल कॉन्सेप्ट फॉर एटम्स, molecules and also for ionic compounds, and after that some basic problems based on the mole concept. What is mole? Mole is just a number, and that number is Avogadro number. And what is Avogadro number? Avogadro number is 6.023 multiplied 10 is to power 23, and Avogadro number is represented by Na, capital N, and A, which is also called Avogadro constant, in honor of scientist Avogadro, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया था and found that 1 gram atom of any element contains same number of atoms. So how we define the Avogadro number is the number of atoms present in 1 gram atom of the element, or the number of molecules present in 1 gram molecule of the substance. So 1 gram atom of element में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, या फिर 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, उसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोल बिकॉज 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर एक लार्ज अमाउंट है. एवोगैड्रो नंबर इज ए लार्ज अमाउंट, सो हमने उसको एक केमिस्ट यूनिट दे दिया जिसको मोल कहते हैं. जैसे कि अगर हम कहें कि 1 दर्जन में कितने नंबर होते हैं, तो 12 नंबर होते हैं 1 दर्जन में. उसी तरह से 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? एवोगैड्रो नंबर होते हैं. सो हाउ वी डिफाइन मोल? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोल. कि जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं मोल. So 1 mole is Avogadro number, or amount of substance is 1 gram of atom or 1 gram of molecule in case of molecule, and this number of atoms of molecules and atoms. So we can express mole also in terms of mass, number and volume. Volume का mainly हम gases के terms में ही mole को express करते हैं. So in terms of mass, what is mole? Is that amount of substance which has mass equal to gram atomic mass if substance is atomic. If substance is atomic, then 1 mole is gram atomic mass, or gram molecular mass if substance is molecular. अगर substance हमारे पास atomic है तो 1 mole is atomic mass, and if substance is molecular then 1 mole is molecular mass in grams. राइट, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे. सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम. So 1 mole of carbon atom is 12 gram, and 1 mole of water molecule is 18 gram because molecular mass of water is 18 gram. Now in terms of number, mole is very simple. That amount of substance which contains Avogadro number of atoms if substance is atomic, and Avogadro number of molecules if substance is molecular. So अगर हम substance atomic लेंगे तो 1 मोल में कितने number of atoms present होंगे? Avogadro number. और 1 मोल molecular में कितने number of molecules present होंगे? Avogadro number. अगर substance हमें molecular लिया है तो. So ये थी number के terms में mole की definition. Let us take an example that 1 mole of carbon atom contains Avogadro number of atoms of carbon. और अगर हम मोलिक्यूल की बात करें दैट 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर. अगर हम बात करें वॉल्यूम की टर्म में, तो वॉल्यूम की टर्म में मेनली हम गैसेज के लिए यूज करते हैं. दैट amount of the gas which has a volume of 22.4 liter at STP. 22.4 liter at STP. STP is standard temperature pressure condition, which is temperature 0 degree Celsius and pressure 1 atmospheric pressure. तो इस कंडीशन पे कोई भी गैस लाइक ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, कोई भी गैस जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन करेगी उस अमाउंट को 1 मोल कहते हैं. So for example, 1 mole of oxygen gas
is 22.4 liter of oxygen at STP, standard temperature pressure condition पे, right? So these are the definition of mole in different terms, like in number की term में हो गया and mass की term में, volume की term में. Now we will discuss some questions based on mole concept और इनके inter conversion, like mole को अगर मोल से अगर एक एटम का मास निकालना है या फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है या फिर किसी गैस के लिए वॉल्यूम निकालनी है या फिर कुछ मास दे दिया कि कुछ ग्राम मास हमारे पास है और उससे अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ कॉपर. कॉपर के एक एटम का मास कैलकुलेट करना है. सो एज वी नो 1 मोल ऑफ कॉपर एटम इज ग्राम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज approximate 64 gram, right? Approximate 64 gram. And in terms of number, 1 mole of copper atom contains Avogadro number of atoms. So इन दोनों चीजों को अगर हम इक्वल पुट करें, like Avogadro number of atoms of copper contains 64 gram of copper atoms, right? तो इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना हो गया 64. और क्वेश्चन में क्या पूछ रखे है कि एन एटम, एक एटम ऑफ कॉपर, कॉपर के एक एटम का मास कितना होगा. तो अगर एक एटम का मास निकालें तो इसको हम डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये वैल्यू. इसको हम सिग्निफिकेंट वैल्यू में भी कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हम ले जाके और फिर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. So next question is calculate the mass of an molecule of water. Water की एक molecule का mass calculate करना है. So as 1 mole of water contains molecular weight of water and molecular weight of water is 18 gram. H2O water का molecular weight जब हम निकालेंगे, क्योंकि additive होता है तो relative mass को add करके water का molecular weight निकालेंगे which is 18 gram. And 1 mole of water contains Avogadro number of molecules. राइट तो जब इन दोनों कंडीशंस को हम इक्वल पुट करेंगे कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर या मोलिकुलर मास ऑफ वाटर. सो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो गया 18 ग्राम. और निकालना है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी कैलकुलेट होके. एंड इसको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिख सकते हैं. सो ये वन टाइप था मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट कर सकते हैं मोल को यूज करके. नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, next type is how many atoms and molecules of 40 gram of phosphorus. 40 gram phosphorus molecule में कितने number of atoms and molecules present है. So first we have to find out molecular mass of P4 which is 160 because 4 atoms and atomic mass of phosphorus is approximate 40, so it comes 160 gram. 160 gram is molecular mass, right? So according to definition of mole, 1 mole of phosphorus molecule contains molecular mass which is 160 and Avogadro number of molecules which is 6.022 multiply 10⁻23. अब अगर हम इन दोनों कंडीशन को इक्वल पुट करें एट 160 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट. नेक्स्ट है 160 ग्राम में अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 40 ग्राम में. सो 40 ग्राम फॉस्फोरस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसको 160 से डिवाइड करेंगे एंड 40 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो जो भी वैल्यू आएगी विच इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस. नेक्स्ट इज हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट. सो P4 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट है, 4, राइट. So 1 molecule of phosphorus contains 4 atoms of phosphorus and this number, ये नंबर यहाँ से ये जो कैलकुलेशन करिए ये आए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. सो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो ये हमारे पास आएगा नंबर ऑफ एटम्स, राइट. सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल. नेक्स्ट टाइप भी यही है कि
नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने इन गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। सो यहाँ पे क्या गिवन है, लेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है जिसका मास गिवन है 0.05 ग्राम, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। So 1 mole of water is molecular mass, so which is 18 gram, and 1 mole of water contains Avogadro number of molecules. Same as previous, इन दोनों को जब हम इक्वल पुट करेंगे, so 18 gram of water have Avogadro number of molecules. और पूछा क्या है, कैलकुलेट क्या करना है कि एक ड्रॉप वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एंड उस ड्रॉप का मास गिवन है 0.05 ग्राम। सो 0.05 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 18 से डिवाइड करेंगे एंड 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। Is calculation of number of molecules present in a given volume of gas under given condition which is STP condition। तो यहाँ पे क्या है कि calculate the number of molecules present in 0.35 liter of ammonia gas at this given condition है 273 Kelvin temperature and 2 atmospheric pressure, right। So given condition हमारे पास है, वॉल्यूम गिवन है 0.35 लीटर एंड टेम्परेचर गिवन है 273 केल्विन, प्रेशर गिवन है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एसटीपी कंडीशन क्या होती है, एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है एंड टेम्परेचर होता है एसटीपी कंडीशन पे 273 केल्विन एंड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई, एक तो गिवन कंडीशन और दूसरी एसटीपी कंडीशन जिसपे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। So यहाँ हम अप्लाइंग गैस इक्वेशन P1 V1 by T1 is P2 V2 by T2, दिस इज गैस इक्वेशन। सो जब हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जब ये वैल्यूज पुट करेंगे P1 V1 T1 की एंड P2 V2 T2 की, तो यहाँ से V2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी 0.70 लीटर विच इज वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन। सो एसटीपी पे हमारे पास कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस है ये हमें पता चल गया। नाउ ऑल्सो वी नो दैट 22.4 liter of ammonia gas contains Avogadro number of molecules at STP and STP पे हमारे पास वॉल्यूम कितनी है 0.70 जो हमने कैलकुलेट करी है। सो इतनी वॉल्यूम ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे एंड 0.70 जिसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन, जितने भी आएंगे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एट एसटीपी कंडीशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस प्रेजेंट एट एसटीपी कंडीशन। सो इस तरह से भी ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि गिवन कंडीशन है एंड एसटीपी पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है किसी भी गैस की। तो वो हम कैसे करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट की जो भी डेफिनेशन आई थी कि गैसेज के लिए एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर गैस होती है, वो कंटेन करती है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यही कंडीशन हम अप्लाई करके और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन कंडीशन पे। So next type is calculate the number of moles in 44.8 liter of carbon dioxide। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। सो गैसेज वाली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एसटीपी पे। सो एसटीपी पे क्या होता है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज 1 मोल, right। So 1 mole of CO2 contains 22.4 liter volume STP कंडीशन पे और गिवन वॉल्यूम कितनी है 44.8 लीटर। सो 44.8 लीटर ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सो 22.4 लीटर में एक मोल है CO2 का एंड 44.8 लीटर में CO2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। सो वैल्यू आएगी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। सो ऐसे भी हम वॉल्यूम गिवन है उसका हम कन्वर्जन कर सकते हैं मोल्स में, वही मोल कॉन्सेप्ट वाली वॉल्यूम की टर्म में कंडीशन अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइप इज कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास बाय द मोल एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ वाटर। दैट 0.1 मोल वाटर दिया हुआ है
एंड उसका एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है, बिकॉज वाटर इज अ मोलिक्यूल, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है 0.1 मोल में. सो एज 1 मोल इज gram molecular mass of water, so which is 18 grams, so 1 mole is 18 gram of water. एक मोल में 18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो 0.1 मोल में कितने ग्राम ऑफ वाटर होगा. इट्स वेरी सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई 0.1 एंड इट कम्स 1.8 ग्राम ऑफ वाटर. सो ये मोलिकुलर मास है जिसमें 0.1 मोल्स प्रेजेंट है एंड 18 ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट है. सो दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ मोल, दैट मोल से हमें एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है. सो इट्स कन्वर्जन, बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू द एटॉमिक और मोलिकुलर मास. Now next question is calculate the volume at STP occupied by 2 mole of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल एसटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. सो एज वी नो 1 मोल ऑफ CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर एसटीपी कंडीशन पे. तो 2 मोल ऑफ CO2 कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, 22.4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इट कम्स 44.8 लीटर एट एसटीपी. तो एसटीपी कंडीशन पे 2 मोल ऑफ CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 44.8 लीटर एट एसटीपी. सो मोल से मोल को हमने कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम में फॉर गैसेज के लिए. ऐसे ही पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि मोल को कैसे मास में कन्वर्ट किया है, नंबर्स में कन्वर्ट किया है. सो ये इंटर कन्वर्जन पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस थे एंड मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस कुछ थ्योरी थी. तो ये हमने पढ़ा. कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए लास्ट तक. ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, जिसमें हम मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.